مووی SM ایکسپلینز میں ہماری آج کی فلم ہے پیسنجرز۔ مووی کے آغاز میں ایک اسپیس شپ دکھایا جاتا ہے جس میں 5000 پیسنجرز اور 258 کرو ممبر زمین سے کسی دوسرے سیر پر زندگی بسر کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس جگہ کو ہوم اسٹیڈ کہتے ہیں۔ اس اسپیس شپ میں تمام پیسنجرز کو ایک اسپیشل قسم کے ہائبرنیشن پوڈز میں رکھا جاتا ہے جس میں انسان کو کم ٹمپریچر پر لمبے عرصے کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ اسپیس شپ کا ارتھ سے پلینٹ تک کا سفر 120 ایئرز کا ہوتا ہے۔ ایولن نامی اس اسپیس شپ کو اس سفر میں 30 سال گزر چکے ہوتے ہیں کہ ایسٹرائڈز جو کہ اسپیس میں پائے جانے والے راکس ہیں وہ شپ کے ساتھ ٹکرا کر اسے ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ایولن ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی والی اسپیس شپ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسے فیچرز انسٹال ہوتے ہیں جو کہ اسپیس شپ میں ہونے والے ڈیمیج کو خود بخود ریپیئر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شپ کے راک سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک ہائبرنیشن پوڈ اوپن ہو جاتا ہے جس میں جیمز نامی ایک میکینیکل انجینئر سفر کے دوران ہی 19 ایئرز پہلے ہی جاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی جیمز اپنی آنکھیں اوپن کرتا ہے تو اسے سامنے اسکرین پر ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ اسے ہوم اسٹیڈ پہنچنے پر ویلکم کرتی ہے۔ جب جیم اس پوڈ سے نکلتا ہے تو اسے بہت چکر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد جاگا ہوتا ہے۔ جب جیمز اپنے کیبن میں آتا ہے تو اسے پھر سے اسکرین پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ اسے کہتی ہے کہ ابھی آپ کو اسپیس شپ پر 4 ماہ اور گزارنے ہوں گے جہاں آپ کو اسپیس میں رہنے کی ٹریننگ دی جائے گی، اچھا کھانا دیا جائے گا اور نیو فرینڈز بھی ملیں گے۔ جیمز اس نئی شروعات کے لیے بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ سفر کے دوران ہی اپنے پوڈ سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی جیمز تیار ہو کر اپنے کیبن سے باہر آتا ہے تو اسے شپ پر اپنے علاوہ اور کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہوتا اور خود کو اکیلا پا کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کرے۔ پھر اس کے بعد وہ ارتھ پر میسج بھیجتا ہے جس پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا یہ میسج 19 ایئرز کے بعد ہی ریسیو ہوگا۔ جیمز یہ سن کر بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے اچانک بار میں کھڑا ایک آدمی نظر آتا ہے لیکن اس سے بات کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک روبوٹ ہے۔ آرتھر نامی یہ روبوٹ بالکل انسان کی طرح نظر آتا اور انسانوں کی طرح ہی باتیں کرتا ہے۔ جیمز آرتھر سے ڈرنک لیتا ہے اور پھر اپنے کیبن میں جا کر سو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن جیمز شپ کے ٹیکنیکل روم میں جا کر واپس پوڈ میں جانے کے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کچھ ٹولز لے کر ہائبرنیشن روم میں جاتا ہے اور خود کو سلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ اس کے بعد جیمز کرو ممبر کے ہائبرنیشن روم میں جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ وہاں کسی کو اٹھا کر واپس پوڈ میں جانے کے لیے ہیلپ لے سکے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں بھی ناکام رہتا ہے کیونکہ اس سے اس روم کا ڈور ہی اوپن نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد جیمز بار میں جا کر آرتھر سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے میں دوبارہ پوڈ میں واپس جا سکوں؟ اس پر آرتھر اسے کہتا ہے کہ اسے اس شپ کے بارے میں کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن نہیں ہے، وہ صرف ایک بار ٹینڈر ہے۔ اس کے بعد وہ جیمز سے کہتا ہے کہ اسے اب یہاں رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے اور پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ وہ یہاں پہ گھومے پھرے تاکہ کچھ نیا ایکسپلور کر سکے اور مزید پریشان ہونے کی بجائے اسے ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید اچھا ٹائم گزار سکے۔ آرتھر کی بات کو فالو کرتے ہوئے جیمز ایک ٹول کی مدد سے لگژری روم کو اوپن کر لیتا ہے اور وہ اپنے کیبن سے اس روم میں شفٹ ہو جاتا ہے اور اچھا ٹائم گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شپ میں کافی ٹائم گزار لیتا ہے لیکن اب وہ خود کو اکیلا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن جیمز ڈرنک کرتا ہوا ہائبرنیشن والے روم میں جا کر سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جیمز کی نظر ایک اروڑا نامی خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے۔ جیمز کو وہ لڑکی بہت پسند آتی ہے۔ نیکسٹ ڈے جیمز اپنا ناشتہ لے کر اروڑا کے پوڈ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس کی ویڈیو فائلز دیکھتا ہے۔ اروڑا بتاتی ہے کہ وہ ایک رائٹر ہے، اسی طرح جیمز اس کی ویڈیوز روزانہ دیکھنے آتا تھا۔ اب اس کو اروڑا سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن جیمز سوچتا ہے کہ اب وہ مزید اکیلا نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ اروڑا کو اس کے پوڈ سے جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی حالت درست کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ہائبرنیشن روم میں اروڑا کو جگانے چلا جاتا ہے۔ جیمز اروڑا کے ہائبرنیشن پوڈ میں خرابی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اروڑا جاگ جاتی ہے۔ اروڑا کے جاگتے ہی جیمز واپس کیبن میں چلا جاتا ہے۔ اروڑا شپ میں دوسرے انسانوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ جیمز اس کے سامنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے پوڈ میں خرابی کی وجہ سے وہ بھی جاگ گیا تھا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے 1 سال پہلے جاگا تھا اور اس نے پوڈ میں واپس جانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ یہ سب سن کر اروڑا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب وہ یہاں اکیلے کیسے زندگی گزارے گی۔ نیکسٹ ڈے وہ پوڈ میں واپس جانے کے لیے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔
जेम्स आर्थर से कहता है कि जब तक वो ये बात खुद अरोड़ा से ना कह ले वो इस बात को सीक्रेट ही रखेगा। इसके बाद जेम्स और अरोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, जहाँ पे जेम्स का ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं होता क्योंकि वो पैसेंजर्स के थर्ड ग्रुप से होता है, जबकि अरोड़ा ग्रुप 1 से होती है, इसलिए उसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। वो अपना ब्रेकफास्ट जेम्स के साथ शेयर करती है। अरोड़ा जेम्स से कहती है कि उन्हें पोर्ट में वापस जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, जिस पर जेम्स उसे बताता है कि वो पिछले 1 साल से यही कोशिश कर रहा है और हमेशा नाकाम रहा है। अब अरोड़ा भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और शिप में रहने की कोशिश करती है। वो शिप में अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में एक बुक लिखना शुरू कर देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ अरोड़ा और जेम्स में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अपना ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। जेम्स अरोड़ा को डेट पर ले जाने के लिए एक लेटर भेजता है, जिसे देखकर अरोड़ा भी बहुत खुश होती है। फिर इवनिंग में वो दोनों तैयार होकर डेट पर जाते हैं। जेम्स अरोड़ा को स्पेस सूट वाले रूम में ले जाता है, जहाँ वो दोनों स्पेस सूट पहन लेते हैं और शिप से बाहर स्पेस में जाकर ग्रेविटी को फील करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अरोड़ा का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए जेम्स उसको प्रपोज करने का सोचता है। दूसरी तरफ अरोड़ा बार में बैठी आर्थर से बातें कर रही होती है और बातों ही बातों में आर्थर उसे बता देता है कि कैसे जेम्स ने उसे हाइबरनेशन पोर्ट से जगाया था, क्योंकि आर्थर को लगता है कि जेम्स उसे सच बता चुका है, क्योंकि उसने जेम्स को अरोड़ा से ये कहते हुए सुना था कि अब हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं है। इसी दौरान जेम्स भी वहाँ पे आ जाता है और अरोड़ा को जेम्स पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जेम्स से पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ही ऐसा क्यों किया। वो उससे बहुत नाराज होती है और अपने कैबिन में चली जाती है। नेक्स्ट डे जेम्स अरोड़ा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अरोड़ा उससे कोई बात नहीं करना चाहती और वो जेम्स से नफरत करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जब अरोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलती है तो उसे शिप में एक ट्री नजर आता है जो कि जेम्स ने उगाया होता है। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी की आवाज़ आती है। अरोड़ा और जेम्स जब उस आदमी के पास आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो शिप में क्रू मेंबर का चीफ ऑफिसर है और शिप के सिस्टम में फेलियर की वजह से उसका पोर्ट भी ओपन हो जाता है। गुस को पता चलता है कि शिप में और भी बहुत से फेलियर्स आ रहे होते हैं और कंप्यूटर को भी इन डैमेजेस की वजह पता नहीं चल रही होती। गुस कहता है कि अगर हमें इस खराबी की वजह ना पता चली तो हो सकता है कि हमारा ये मिशन नाकाम हो जाए और इस वजह से शिप में मौजूद सब लोग मर सकते हैं। वो अरोड़ा और जेम्स की हेल्प से शिप को खुद ठीक करने की कोशिश करता है। गुस को अचानक से बहुत वीकनेस फील होने लगती है क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद नींद से जागा होता है और जब वो खांसी करता है तो उसकी खांसी में ब्लड नजर आता है। वो उन्हें कहता है कि अब उसे आराम की ज़रूरत है। इसके बाद जेम्स और अरोड़ा अपने कैबिन में आराम के लिए चले जाते हैं। इसके बाद अरोड़ा शिप के स्विमिंग पूल में स्विम करती हुई दिखाई देती है कि अचानक शिप में किसी खराबी की वजह से ग्रेविटी खत्म हो जाती है और हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। ग्रेविटी ना होने की वजह से स्विमिंग पूल का पानी भी ऊपर की तरफ उठने लगता है और अरोड़ा पानी के एक बबल में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है इसे बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाती। फिर जब सिस्टम की ग्रेविटी खुद ब खुद वापस आती है तो अरोड़ा पानी में गिर जाती है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो तीनों मिलकर ग्रेविटी बंद होने की वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले शिप एक रॉक से टकराई थी जिसकी वजह से उसमें टेक्निकल खराबी आ गई थी। इसके बाद गुस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिम और अरोड़ा उसको इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं जहां वो उसे ऑटोडॉक में डालते हैं। ऑटोडॉक उन्हें बताता है कि गुस एक खराब पोर्ट में काफ़ी अरसा रहा है जिसकी वजह से उसकी तबीयत अब मज़ीद खराब होती जाएगी और उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसके बाद वो मर जाएगा। ये बात सुनकर जिम और अरोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद गुस जिम और अरोड़ा को चीफ आईडी कार्ड दे देता है जिसकी मदद से वो अब शिप में कहीं भी जा सकते हैं। गुस उनसे कहता है कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम्हें शिप में मौजूद खराबी को ठीक करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शिप में मौजूद सब लोग मर जाएंगे। गुस के जाने के बाद जिम और अरोड़ा शिप में हुई खराबी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि शिप के साथ रॉक टकराने की वजह से शिप में होल हो गया है जिसकी वजह से प्लाज्मा हीट शिप के अंदर एंटर हो रही है और इस वजह से स्पेसशिप का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। जेम्स और अरोड़ा शिप के ऑटोमेटिक सिस्टम से जाकर प्लाज्मा हीट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम फेल हो जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि जेम्स खुद स्पेसशिप से बाहर जाकर उसके वेंटिलेटर को ओपन करे ताकि हीट को कम किया जा सके। इसके बाद जेम्स स्पेसशिप से बाहर जाने की तैयारी करता है। वो स्पेस सूट पहनता है। अरोड़ा जेम्स के स्पेसशिप से बाहर जाने की वजह से बहुत डर रही होती है। वो कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसे इस स्पेसशिप में अब अकेला रहना पड़ेगा।
जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए वो जेम्स से कहती है कि वो जल्दी से वेंट को रिपेयर करके वापस आ जाए। इसके बाद जेम्स स्पेसशिप से बाहर जाता है और रिएक्टर के वेंट को ओपन कर देता है ताकि सारी हीट बाहर जा सके। वो खुद को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डोर को शील्ड के तौर पर यूज़ करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो स्पेस में चला जाता है। उसका स्पेस सूट भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जेम्स ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेहोश हो जाता है। अरोरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। फिर वो स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर जाकर जेम्स को किसी तरह स्पेसशिप के अंदर ले आती है। फिर वो जेम्स को ऑटो डॉक वाले पोर्ट में लटा देती है ताकि वो उसको ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ठीक कर सके। एवलन शिप अपने रिएक्टर को रिपेयर करने में सक्सेसफुल हो जाती है और पहले की तरह काम करना शुरू कर देती है, यानी उन दोनों ने मिलकर शिप के डिफेक्ट को ठीक कर दिया होता है। जब जेम्स को होश आता है तो वो डिस्कवर करता है कि ये ऑटो डॉक अपने अंदर एक इंसान को हाइबरनेट करने की सलाहियत रखता है। वो अरोरा को ऑटो डॉक में वापस से सोने को कहता है ताकि वो होमस्टेड प्लैनेट तक पहुंच जाए और एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सके। और खुद वो बाहर रहना चाहता है, लेकिन अरोरा ऐसा करने से इनकार कर देती है और जेम्स से कहती है कि वो उसके साथ एवलन में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहती है। फिर जेम्स अरोरा को रिंग देता है, जिसे अरोरा एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग शिप में खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। 88 ईयर्स के बाद अब जब सब लोग होमस्टेड पहुंच जाने के बाद अपने पोर्ट से जागते हैं तो वो देखते हैं कि एवलन शिप में ट्रीज़ और प्लांट्स हैं। वहाँ पर बर्ड्स भी मौजूद हैं जिन्हें जेम्स और अरोरा आज़ाद करके शिप में छोड़ देते हैं। वो लोग वहाँ पर वेजिटेबल्स भी उगाते हैं और अपने रहने के लिए उस जगह को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। शिप का क्रू ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। अरोरा ने अपने शिप में इस एक्सपीरियंस के बारे में एक बुक लिखी होती है जिसमें उसने अपने और जेम्स के शिप में रहने की स्टोरी बताई होती है और यही इस मूवी का एंड होता है।